Good morning, student. Previously, we have discussed regarding what is matrix, types of matrix, and various process and formulas involved in matrix. Now, in this class, we will go through the most important topic. Generally, question is asked from this topic in board examination, that is elementary transformation. Means how by elementary transformation we find the inverse of a given matrix. This matrix may be of order 2, may be of order 3. So, in this class I will explain you regarding if a matrix is given, so by changing its row and column, how we find inverse. One thing, the most important point we have to remember is that if we are finding the inverse through row operation, the in the entire last up to the last solution of the question we have to follow the row operation. If we are finding the inverse by column operation, we have to follow the column operation. Means we cannot use the process of both row and column operation in the finding the inverse of a given matrix. For example, see here how we can change the operation. For example, consider a matrix is given, and if we have to change this C1 into C2, means C1 plus C2, so it has been replaced by C1 is replaced by C2, C2 is replaced by C1. Note that the process for performing an elementary column operation of any matrix is very similar to the process for performing an elementary row operation. The main difference are to operand on the R matrix A, the row operation is created for an R into R identity matrix, whereas the column operation is created for an C into C identity. To perform a row operation, A is pre-multiplied by E, whereas is performed a column operation, A is post-multiplied by P. Elementary matrix operation. Elementary matrix operation plays an important role in many matrix algebra applications, such as finding the inverse of a matrix and solving simultaneous linear equation. मैट्रिक्स ऑपरेशन जो होता है रो और कॉलम का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने में, या कोई 3 इक्वेशन का प्रॉब्लम है, 4 इक्वेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट मेथड होता है. अब हम ये प्रोसेस को समझते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है. जनरली 3 तरह के एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं. फर्स्ट इज इंटरचेंज टू रो और कॉलम. मीन्स हम किसी भी दो रो को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे गिवन मैट्रिक्स कोई ए है, उसके R1 को हम R3 के प्लेस पे लिख सकते हैं, R3 को हम R1 के प्लेस पे लिख सकते हैं, R2 को हम R1 के प्लेस पे लिख सकते हैं, R2 को हम R3 के प्लेस पे लिख सकते हैं. उसी तरह से किसी कॉलम C1 को हम C2 की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, C2 को C1 में, C3 को C2 में. मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर. जैसे कंसीडर R1 इज ए गिवन रो, तो वी कैन अप्लाई द प्रोसेस टू R1, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R1 will be multiplied by 2. For example, R3 is the row of a given matrix, so we can multiply by any constant value, that will be 4, 5. 4 से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4R3 हो जाएगा. थर्ड, मल्टीप्लाई ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड ऐड द रिजल्ट टू अनदर रो और कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर राइटिंग R1 is replaced by R1 plus 2R2,
मीन्स R1 के पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एक नया रूल फॉलो करेगा कि R1 के पोजीशन पे हम रूल ये लगाएंगे कि R1 के एलिमेंट को ऐड करेंगे, R2 के एलिमेंट को 2 से इनटू करके ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हम R1 के पोजीशन पे रिप्लेस करेंगे। तो ये 3 तरह का ऑपरेशन होता है कि किसी भी रो को हम किसी भी रो के साथ, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो और कॉलम को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तीसरा, किसी रो को हम रिप्लेस करके उस रो को ऐड करके किसी अनदर रो से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। When these operations are performed on row as they are called elementary row operation, and when they are performed on column they are called elementary column operation. तो इस चीज़ को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. This thing is very important to understand to find the inverse of a given matrix. Now we are understanding this fact by the use of operation. Interchanging row I and j means I row will be in the place of j and j row will be in the place of I. Means we are interchanging both the row. Multiply row I by s where s is not equal to 0. See here, means Ri means R is a matrix whose position has been denoted by I, means Ri. So I am replacing this Ri by S. Ri means we have multiplied a constant in this row. Add S times row I to row j. Consider R1 is a given matrix. So we will use the symbol R1 is replaced by R1 plus 2 R3. The same operation is we can understand by column operation. Interchange column I and j. C1 will be replaced by Cj to C3. In this way, Ci for example have been replaced by Cj and Cj has been replaced by Ci. Multiply column I by S where S is not equal to 0. SC1 C1 add S times column I to column J SCI plus CJ CI. इन हिंदी वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे आर आई या आर जे है, तो आर जे की जगह पे हम आर आई को लिख सकते हैं और आर आई की जगह पे हम आर जे को लिख सकते हैं. या किसी भी रो को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रो को रिप्लेस करके उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी हम उसको वहाँ पे रखेंगे. ऐड एस टाइम्स रो आई टू रो जे. जैसे किसी मैट्रिक्स के रो को रिप्लेस करके हम उस मैट्रिक्स में किसी अदर मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं तो उसके पोजीशन पे हम लिख सकते हैं. सेम ऑपरेशन होता है कॉलम में. किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. किसी भी एक कॉलम को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके पोजीशन पे लिख सकते हैं. किसी एक कॉलम के जगह पे हम दूसरे कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके वहाँ लिख सकते हैं. एलिमेंट्री ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, ए क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन. सी हियर, ईच टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस may be performed by matrix multiplication. हर एक तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से यूजिंग स्क्वायर मैट्रिसेस कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, सपोज you want to interchange row 1 and 2 of matrix A. जैसे हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना चाहते हैं. क्लियर है? सी हियर, one two of matrix A. To accomplish this, you could perform A by E
to product B as shown below. We have shown the product and now we have replaced. Here E is an elementary operator. It operates on A to produce the desired interchange row in B, where what we would like to know, of course, how to find E return. हमने पिछले क्लास में ऐसा सीखा है कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो मैट्रिक्स गिवन है, उसको हमने मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स लाया और उस मैट्रिक्स में हमने रो के ऑपरेशन को देखा, किया, कॉलम के ऑपरेशन को किया और देखा। हाउ टू परफॉर्म एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं? कॉलम ऑपरेशन भी सेम वही है कि कॉलम ऑपरेशन में हम किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। टू परफॉर्म एन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए एंड आर इनटू सी मैट्रिक्स, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को करने के लिए हम ये स्टेप्स करते हैं। टू फाइंड ई द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेटर, अप्लाई द ऑपरेशन टू एन सी इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले 1 0 0 1, उसके फर्स्ट कॉलम को सेकंड के पोजीशन पे लिखें, सेकंड को फर्स्ट के पोजीशन पे लिखें, तो वी विल अंडरस्टैंड the column operation. To carry out the elementary column operation post multiplication A by E, let us work through an elementary column operation. हम एक में करके देखते हैं. To illustrate the process, for example, suppose we want to interchange the first and second column of 3 into 2 matrix to create the elementary column operation E. We interchange the first and second column of the identity matrix I2. See here. हमने क्या किया कि कॉलम को आपस में चेंज किया, C2 की जगह C1 को लाया और C1 की जगह C2 को लेके आया। Then to interchange the first and second column of A, we post multiply A by E as shown below. मल्टीप्लाइंग ए रो बाई ए नंबर। अगर किसी रो में हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन द सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स ए बाई 7, एज्यूम ए इज ए 2 into 3 मैट्रिक्स, इज ए 2 into 3 मैट्रिक्स। टू क्रिएट द एलिमेंट्री रो ऑपरेटर ई, वी मल्टीप्लाई each element in the second row of the identity matrix I2 by 7. Means second row has been multiplied by 7. So place has been changed, 7 into 0 0, 7 into 1 7. Then to multiply each element in the second row of A by 7, we pre-multiply A by E. 7R1 is replaced by R2. Now 7R1 plus R2. In this manner we have gone through the row operation. Multiply a row and add it to another row. किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं और उसको फिर रिप्लेस करते हैं। Assume A is a 2 into 2 matrix. Suppose we want to multiply each element in the first row of A by 3, and if we want to add that result to the second row of A. For this operation, creating the elementary row operation in a two-step process. First we multiply each element in the first row of the identity matrix I1 2 by 3. Next we add the result of that multiplication to the second row of I2 to produce E. Now 1 0 0 1
has been replaced, R1 has been replaced by 2R1 plus R2 and so on. We have already discussed this elementary matrix operation. Elementary matrix operation plays very important role in solving matrix algebra application, finding the inverse of a matrix and solving simultaneous linear equation. एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स अलजेब्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। इसी ऑपरेशन को हम दो तरीके से करते हैं जो हम पहले भी पढ़े हैं। दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम। ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए नॉन जीरो नंबर, multiply a row or column by a non-zero number and add the result to another row or column। फिर ये किसी एक रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ ऐड करके इस तरह से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। when these operations are performed on row as they are called elementary row operation and when they are performed on column they are called elementary column operation। in हिंदी we can explain, जैसे किसी मैट्रिक्स के ऑपरेशन को हम इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं तो गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू को हम पहले लिखते हैं a, उस a को हम लिखते हैं i इंटू ए। i के पोजीशन पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो अगर गिवन मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है तो 2 ऑर्डर का होगा, गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा उसी का हम ऑपरेशन करते हैं और उसी का हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो उसको a की वैल्यू को हमने लिखा, i इंटू ए लिखा, i के पोजीशन पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का लिखे। फिर LHS में जो ऑपरेशन हम LHS में करेंगे मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन हम RHS में करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड आते हैं, जैसे 1 2 3 4 अगर कोई मैट्रिक्स है इसका हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हमको इस मैट्रिक्स को i के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? पहले कॉलम के पोजीशन को हम i के कॉलम से मैच करेंगे। वो ऑलरेडी 1 है, 1 2 3 4। फिर फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है 3, तो कंपेयर करेंगे i से तो 1 0, किसी भी तरह हमको उसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 माइनस R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 3 इंटू R1। तो क्या हो गया हमारा 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 0, वो 0 बन गया। फिर उधर क्या हो गया 1 0 0 1 0 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 हो गया। तो इधर हमने क्या देखा कि 1 3 0 बन गया 2। अब उस 2 को हमको 0 बनाना है, उस 2 को हमको 0 बनाना है और 4 गिवन है। तो हम क्या करेंगे 4 को रिप्लेस करेंगे R2 को, R2 इज रिप्लेस्ड बाय 4 डिवाइड R2 बाई 4। तो 4 से जैसे ही रिप्लेस होगा तो वो वैल्यू 4/4 1 हो जाएगा। और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि 1 0 0 1, तो वो -3 और 1 था तो उसको भी रिप्लेस करेंगे डिवाइडेड बाई 4, -3/4 और 1/4 हो गया। तो 1 0 0 और फिर नीचे हमारा 1 आ गया। तो A इन्वर्स की जो वैल्यू हुई उधर वो कितना हो गई 1 0 -3/4 और 1/4 A इन्वर्स की हमारी वैल्यू हो गई। इसी तरह से हम कोई भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं
और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसको LHS में रखेंगे ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू लिखेंगे आई इंटू ए। तो ए की जो मैट्रिक्स है उसके बदले में जितने भी ऑर्डर का है आई के पोजीशन पे रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करना शुरू करेंगे एज अकॉर्डिंग कंपेयर टू आई। जैसे आई के फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 है तो इसका ऑपरेशन उस तरह से करेंगे कि पहला कॉलम जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाए। इस तरह से हम ऑपरेशन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ए की वैल्यू हमारा आई में चेंज नहीं हो जाता है। जब ए की वैल्यू आई में चेंज हो गया तो उधर RHS में जो मैट्रिक्स आया दैट विल बी द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स।